آج میرا موضوع ہے کہ ہم لوگ ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں یا امامہ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. امامہ شریف کے سامنے لگایا, آپ نے ٹوپی پہنا ہے, لیکن اگر ایک کا دو کا آدمی ایسا ملے کہ نہیں ہم ٹوپی نہیں لگائیں گے اس لیے ٹوپی لگانا کوئی ضروری نہیں ہے, اسی پر آج بیان ہوگا حالات حاضرہ پر. درود پاک اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے ہو گئے اس سے رک جاؤ. نبی نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب مسئلہ سمجھیے, مرد کا ستر عورت یعنی چھپانا جس کو فرض ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنا تک. یہ تو چھپانا ہی چھپانا ہے, چاہے پتے سے ڈھانپیے, آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے, پہلے رہا ہوگا, ایسی حالت آئی ہوگی. آج کی ڈیٹ میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک سے ایک کپڑے گھر میں, دکان میں, مکان میں, ہر جگہ موجود ہیں. لیکن جو شریعت کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مرد کا ستر عورت ناف سے لے کے گھٹنا تک, عورت کا ستر عورت پورا جسم سوائے چہرہ, ہتھیلی, ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کی ہتھیلی کی, کیونکہ وہاں ضرورت ہے. پیر سے چلنا ہے, ہاتھ سے پکڑنا ہے, لیکن پھر بھی چہرہ وہ چھپائے رکھے تو اس میں پردگی ہے, بھلائی ہے, عزت ہے, جو عام طور پر یہ لوگ یوز کر رہے ہیں کہ عورتوں کا چہرہ بھی ڈھپا رہتا ہے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن میں بات کروں گا ٹوپی پر. کیا ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے, ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر, کہتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ تکبیر کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر, اس کا نام تکبیر تحریمہ, یہ فرض ہے. اس کے بعد قیام, قعود, رکوع, سجدہ. لیکن سب سے پہلے کہاں سے شروع؟ اللہ اکبر سے. اب ذرا سا اسی کے لپیٹ میں کچھ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں. امام صاحب رکوع میں چلے گئے, آپ آئے, کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے, لیکن رکوع میں جاتے جاتے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر, یہ ایسا اللہ اکبر ہے, تکبیر تحریمہ ہے, وہ کہنے کے بعد ہی آپ نماز میں شامل ہوتے ہیں. وہ اگر نہ کہے, کوئی ایسے ہی کھڑا رہے, نہیں ہوگا, کہنا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رکوع میں بھی اگر آپ جب جماعت پا رہے ہیں تو آپ ایسا نہیں کہ تیزی میں اللہ اکبر چھوڑ دیجیے, خالی جھک جائیے, نہیں ہوگا نا. اللہ اکبر کہنا ہوگا. صاحب سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے. نیت تو نام ہے دل کے ارادے کا. اگر وقت نہ ملا, زبان سے نہ کہیے, دل میں نیت کر لیا اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیے. اللہ اکبر سے کہنا ہوگا. یہ تکبیر تحریمہ ہے, یہ فرض ہے. بہرحال بات چل رہی تھی ٹوپی کی. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نبی نے امامہ شریف لگایا. اس لیے علماء
सुलहा इमामा लगाते हैं। आम लोगों में भी परमिशन है, ऐसा नहीं नो परमिशन, लेकिन हाँ उस लायक तो होना चाहिए यार, उसका भी एक मकाम है, मर्तबा है। अब पता चला हम गुनाह का काम किए जा रहे हैं और इमामा पहन के घूम रहे हैं, तो क्या कहेंगे? भाई इज्जत तो करो। टोपी की आप देखिए कितनी बड़ी इज्जत है। पहले बात खत्म कर दूं कि नबी ने क्या फरमाया टोपी के ताल्लुक से, कैसे सुनो, नंगे से नमाज न पढ़ो, टोपी लगा के पढ़ो। नबी ने नमाज टोपी लगा के भी पढ़ी, इमामा लगा के पढ़ी। तो टोपी लगा के भी पढ़ना सुन्नत है और टोपी के ऊपर भी इमामा बांधना ये भी सुन्नत है। इमामा में बहुत ज्यादा सवाब भी है, लेकिन मैंने पहले कह दिया ऐसा नहीं है कि खास लोग ही लगाएंगे पहनेंगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर ख्याल होना चाहिए कि इमामा के लायक हमारा अमल हो, इसकी इज्जत करें। ऐसा नहीं है कि रोजी कैसी आ रही है, कुछ भी बकते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं और इमामा पहन के हम घूम रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? मजाक तो उड़ाएंगे उनके, साथ ही में कहेंगे कि देखो इस्लाम कैसा मजहब है, बात इस्लाम तक आ जाएगी। अमल हमारा, अमल हमारे घर का, अमल हमारे कैरेक्टर का, और बात उठ रही इस्लाम पर, उंगली उठ रही इस्लाम पर। इसलिए इस्लाम ने कहा, जो फॉर्मूला दिया वो के जिसमें शान है, इज्जत है, वो काम किया करो। खुलासा कलाम ये, नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जब बड़े की बारगाह में आप आए हैं, बड़े की बारगाह में आए तो कैसे आएंगे? रिस्पेक्ट से आएंगे। जब बड़े की बारगाह में आप दुनिया ही मान लीजिए एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? अदब से खड़े होते हैं, रिस्पेक्ट से खड़े होते हैं। अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे, और ऐसे खड़े होते हैं तो कैसे लगेंगे? एक आदमी तो मैंने समझाया कि आप यहाँ हाथ बांधते हैं, हम लोग हनफी लोग यहाँ बांधते हैं हाथ, यहाँ के बारे में भी हदीस है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि हदीस नहीं है, हदीस है, लेकिन दोनों में मैंने समझाया उनको कि यहाँ ज्यादा रिस्पेक्ट है, ज्यादा अदब है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बात समझ में आ गई और यहाँ बांधना फिर शुरू कर दिया। रिस्पेक्ट का नाम है, जितना ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे नमाज में, इतने ज्यादा मकबूल है नमाज। सजदा करते हैं आप, क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सर कहाँ है? नीचे। सजदा में जबान में रब की बड़ाई है, सुबहान रब्बियल आला। सुबहान का माना पाक होता है, मेरा रब आला है, मेरा रब पाक है, मेरा रब आला है। सुबहान रब्बिल अज़ीम, मेरा रब बड़ा है। रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं, रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं। अपने तो छोटा समझ रहे, या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, सजदे में मैं तेरी बारगाह मैंने सर रख दिया है। और जबान से कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मतलब ये है नमाज में ये है बंदा अपने को बुझा देता है, अपने को गुम कर देता है। अल्लाह अकबर, कहते अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आप बड़े की बारगाह में पहुंचे और बड़े के बड़े, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अल्लाह की बारगाह में आप खड़े होते हैं तो अदब से तो खड़ा होना चाहिए। टोपी में अदब है, टोपी में रिस्पेक्ट है, टोपी में ताजीम है। अब एक हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, हजरत नाफे को देखा कि वो एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं, एक कपड़ा है ना, लपेट के सर खुला रख के नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, सुनो, अगर मैं तुमको किसी दूसरे के पास भेजूं, बड़े आदमी के पास भेजूं, कोई पैगाम लेकर किसी काम से भेजूं, तो बताओ किस ड्रेस में जाओगे, किस भेष में जाओगे, कौन से लिबास में जाओगे? कहा कि हाँ हम तो अच्छे लिबास में जाएंगे ताकि वहां हम अच्छे लगे। तो कहने लगे जब रब की बारगाह में तुम नमाज पढ़ रहे हो और एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे हो, तो यहाँ तो ज्यादा मुस्तहिक ये है खुदा कि रब की बारगाह में हाजिर होना चाहिए तो ज्यादा सज करके, ज्यादा
अच्छा कपड़ा पहन करके, उम्दा, जो अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दिया है, ये तो तुम्हारी कैपेसिटी है, ये तुम्हारी ताकत है, इसलिए जुमा में हम लोग आते हैं तो अपने अपने अंदाज से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं ताकि रब की बारगाह में जा रहे हैं। बहरहाल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि देखो, अल्लाह ज्यादा इस बात का मुस्तहिक है कि तुम अल्लाह की बारगाह में रिस्पेक्ट से खड़े हो, इज्जत से खड़े हो। क्या मतलब यह है कि टोपी लगा लिया करो और अपने आप को सजाया करो। एक हदीस पाक जो पेश किया जाता है, जो लोग कहते हैं कि नहीं कोई जरूरी का मतलब होता है वाजिब या फर्ज, जरूरी का मतलब वाजिब या फर्ज, सुन्नत मुअक्कदा, यह है जरूरी, और सुन्नत गैर मुअक्कदा वक्त मिला तो आपने पढ़ा, नफिल पढ़ा, वक्त मिला तो पढ़ लिया। मुस्तहब का माना होता है अच्छा। टोपी लगाना अच्छा है, टोपी लगाना ताजीम है, टोपी लगाने में एक मकाम है, मर्तबा समझ में आता है, तो हम क्या कहते हैं, टोपी लगाना मुस्तहब है। उलमा फरमाते हैं कि टोपी लगाना मुस्तहब है, अच्छा है, इज्जत है, इसमें नमाज का मकाम है, मर्तबा है, इसलिए लगाना चाहिए। लेकिन वो एक हदीस पेश करते हैं कि हज़रत जाबिर ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी जबकि उनके पास दूसरे कपड़े मौजूद थे। बिल्कुल सही बात है, हदीस में है, लेकिन हाँ हम भी कहते हैं एक कपड़े में भी नमाज होगी। क्यों? सत्र औरत कहाँ से है? नाप से लेके घुटना तक, कितना छुपा लिया आपने, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इस पे अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है, वुसअत दिया है, माल दिया है, कपड़ा दिया है, तो पूरा छुपाइए। दूसरी बात यह है कि हम शर्ट पहनते कि नहीं पहनते हैं, पूरा सब छुपाते हैं, लेकिन सर क्यों नहीं छुपाएंगे? पता चला सर छुपाने में इज्जत है, सर छुपाने में मकाम है। यही वजह है, हम नमाज तो नमाज है, हक तो यह है कि मिलाद शरीफ में अगर बैठते हैं, किसी के पास टोपी नहीं होती तो रुमाल रख लिया करते हैं। क्यों? ये मिलाद का अदब है, ये नेक महफिल का अदब है, रिस्पेक्ट है कि हम रुमाल से भी सर को ढांप लिया करते हैं। पता ये चला, खुलासा ये बात मालूम हुई कि टोपी लगाना ये अच्छा है, ये मकाम मर्तबा को बताता है, इसी में इज्जत है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हदीस पर अमल करने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।